Good morning, student. Welcome in your bio class. So, how are you, student? I hope all will be well. So, this time you just protect yourself from COVID 19. It is very dangerous time period for uh, all all of us because this is very lethal virus. Basically, there is no vaccine, so there are some instructions which we should follow to protect ourselves from COVID-19. So these instructions you have read so many times, but it should be implemented in your behavior. It is just wear mask. Second, keep distancing near about 6 feet distancing. Third one, always use sanitizer to wash your hand, and when you touch any objects after immediately you should wash your hand at least 10 to 20 1 minutes, at least 1 minutes. Scrub your upper surface of the hand by soap and is with the sanitizer, and then you ensure that you can taking or you just taking some instructions to protect yourself from this virus, no COVID-19. So after that, now we start our syllabus, which is this is from photosynthesis. So in previous topic we have read what is light reaction and LHC, light harvesting complex. There are two harvesting complex is made up of some pigments, and it is work just like antenna. There are two harvesting system, that LHC, it is P700 and P680. Means P700 means there is chlorophyll A, it's absorb 700 nanometer wavelength light, and in pH2 there is absorption of 680 nanometer light. It is called P680. Then we have discussed about electron transport system, and these are JAD scheme. Electron transport system is a system that reveal that how to electron transport from electron transport in this system. So there is first electron receptors, then it will be go in many intermediate substance and form intermediate compounds, and after that it will become in LHC or photosystem 1. There are photosystem two photosystem involved, photosystem 2 and photosystem 1, and it is acyclic photophosphorylation. JAD scheme show acyclic photophosphorylation where electrons is emitted by one system, LHC system, and it is not returned their system but it move in other photosystem. फोटोसिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 में रिटर्न ना होकर फोटोसिस्टम ए के में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट हो रही है. जब एसाइक्लिक फॉर्म में एटीपी और एनर्जी सोर्स जनरेट होता है तो उसको एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं. और एक सिस्टम जिसमें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, it is system 13.6. it is cyclic photophosphorylation. cyclic photophosphorylation में जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वापस उसी जगह पे वापस आ रहा है. देखो यहाँ पे लाइट इमिटेड हुई क्लोरोफिल ए पर. यहाँ का जो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसने क्लोरोफिल को एक्साइट किया, उससे एक इलेक्ट्रॉन्स निकला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड से होता हुआ अगेन इट्स रिटर्न इन क्लोरोफिल ए और P700 फोटोसिस्टम 1. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज
cyclic phosphorylation और दिस वन इज acyclic phosphorylation। ठीक है, ये किसका है? acyclic phosphorylation का है। ये साइक्लिक acyclic phosphorylation हमेशा जेड स्कीम शो करता है। मीन्स इसका शेप कैसा आ रहा है? जेड शेप, ऐसा ऐसा और ऐसा, इस तरीके से जेड शेप में हो रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं नॉन फॉस्फोरिलेशन में? नॉन फॉस्फोरिलेशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन LHC मतलब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सीड निकल रहा है, इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इसका साइटोक्यूनॉन, साइटोसाइनिन और डिफरेंट पिगमेंट्स से होता हुआ, ठीक है। इसके बाद ये LHC सिस्टम 1 पर चला गया, फोटो सिस्टम 1 पर चला गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो अब ये जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिटर्न हो रहा है? इसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज अ मेन हैपनिंग्स इन acyclic photosphorylation. Second, emission of oxygen or emitted oxygen gas is other product, other हैपनिंग। सो 2 हैपनिंग हो रही हैं, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और एक NADPH फॉर्म हो रहा है। तो देयर आर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 3 प्रोसेस हो रही हैं। क्लियर? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशंस, इस तरीके से एक ये इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से एसाइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमेशा डिफरेंस आता है कि दोनों के डिफरेंस क्या है। तो आप इस तरीके से इसको अंडरस्टूड करके और इसके डिफरेंस को लिख सकते हो। अब एक प्रोसेस आती है, दिस इज़ द नेक्स्ट टर्म, इट इज़ कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जो इसमें ATP सिंथेसाइज हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, वो उसकी मैकेनिज़्म किस तरीके से है। ठीक है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म। ये किसी मैकेनिज़म्स को एक्सप्लेन करने के लिए कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वर्क कर रही है। लाइक एन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ATPase synthesis is linked to develop a protein gradients across a membrane. ATP का जो सिंथेसिस है बेसिकली ये प्रोटीन ग्रेडियंट्स के डेवलपमेंट से लिंक है। ATP सिंथेसिस प्रोटीन ग्रेडियंट्स, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन ग्रेडियंट्स का जो डेवलपमेंट है उससे लिंक्ड है। क्लियर? अब ये किस तरीके से, यह आपको पहले भी पता है कि थैलेकॉइड की जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो जो स्ट्रोमा लैमेली होती है उसमें एक फोटो सिस्टम होता है और लैमेली के अंदर, थैलेकॉइड्स के अंदर दूसरा फोटोसिंथेसिस सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं। ठीक है ना? और लैमेली पर जो स्ट्रोमा लैमेली है उसमें फोटो सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है? 2 वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ये आपको हम पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो थैलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द membrane of thylakoids where proton accumulation is towards the inside of the membrane in lumen. In respiration, proton accumulation in the intermembrane space of mitochondria. respiration की process होगी तो जो accumulation हो रहा है वो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रही है। और यदि फोटोसिंथेसिस में यही प्रोसेस हो गई तो वो मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड पे रहेगा। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में भी ATP फॉर्म हो रही है और रेस्पिरेशन में भी फॉर्म हो रही है, लेकिन वो दोनों सेलुलर ऑर्गेनेल्स अलग हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होगा और फोटोसिंथेसिस में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है? Now let us understand what cause the proton gradients across membrane. प्रोटॉन के ग्रेडियंट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए फिगर देखो, ये फिगर, सी दिस फिगर, दिस इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये थैलेकॉइड के अंदर का ल्यूमेन है। ठीक है? थैलेकॉइड के अंदर का ल्यूमेन है। प्रोसेस इसमें कौन सी हो रही है? लाइट रिएक्शन।
तो लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस हो रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है और NaDPH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फोटो यहाँ पे क्या है, लैम्बली के अंदर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ये जो इस थैलेकॉइड है इसमें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों काम कर रहे हैं, बट जो स्ट्रोमा लैम्बली होता है ये इस तरीके से इसको अटैच करते हुए ये दूसरे थैलेकॉइड्स अटैच रहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैम्बली। स्ट्रोमा लैम्बली में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा है, फोटो सिस्टम 2। तो अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स मिले, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन्स के फॉर्म पे इसके अंदर क्या होगा, कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एटीपी सिंथेसिस की प्रेजेंस में स्ट्रोमा में आते हैं, एफ पार्टिकल्स की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये एटीपी फॉर्म हो रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 के थ्रू ये क्या है, साइटोक्रोम्स बी, साइटोक्रोम्स एफ, ये साइटोक्रोम्स बी, साइटोक्रोम एफ वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, समझ में, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहे हैं। और हाइड्रोजन आयन क्या है, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है जो वाटर लिसिस, जब वाटर का हाइड्रोलिसिस हो, वाटर लिसिस हो रहा है तो ये ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और ये इस तरीके से NaP, और इसका जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए जो NaDP है जो पॉजिटिव वो है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NaDPH हो जाएगा। तो ATP सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस, मतलब केमिकल ऑस्मोसिस हो रहा है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है, हायर। ठीक है, और ये एटीपी का सिंथेसिस में ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन ये बाहर की ओर आ रहे हैं और एटीपी को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कीमो ऑस्मोसिस क्लियर करता है कि एटीपी का सिंथेसिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस के लिंक पर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम फॉर प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फोटो सिस्टम पर और उससे प्रोटॉन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। दिस हैपन द प्राइमरी रिसेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which is located towards the outer side of membrane transfer its electrons not to electrons carrier but to an H carrier। इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है अपना, हाइड्रोजन आयन जो है साइटोक्रोम्स के थ्रू होता हुआ ये ल्यूमन में एंटर कर गया है। क्लियर स्टूडेंट, और ये ल्यूमन में एंटर करके NADP को एक रिड्यूस होने की रिक्वायरमेंट है। द NADPH2 reductase enzymes is located on the stroma side of the membrane। स्ट्रोमा में कौन सा एक एंजाइम्स है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम्स, जो कि NADP को रिडक्ट करता है और रिड्यूस करता है किसके फॉर्म पर, NADPH प्लस H प्लस के फॉर्म पर। इस तरीके से प्रोटॉन और ऑल्सो रिमूव, जितना भी प्रोटॉन ल्यूमिन से बाहर आ रहा है वो सब क्या होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, और वो प्रोटॉन जो स्ट्रोमा पे आ रहे हैं वो धीरे 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 क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। और ल्यूमन में भी प्रोटॉन्स होते हैं, वो ल्यूमन से वो प्रोटॉन कहाँ पर जा रहा है, स्ट्रोमा पर। ठीक है, इट्स क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट्स डेवलप हो गया, मीन्स ल्यूमेन के अंदर अधिक प्रोटॉन है और बाहर साइड पर कम प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स ही एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन pH ऑफ द ल्यूमन। और हाइड्रोजन आयन यदि इसमें बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स बढ़ता जाएगा तो pH भी अपने आप पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, अब वो कम होता जा रहा है और एसिटिक मीडिया होता जा रहा है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन स्ट्रोमा decrease in number while in lumen there is accumulation of protons।
ठीक है, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो रहा है क्योंकि NADPH फॉर्म हो रहा है। दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। और थैलेकॉइड तथा स्ट्रोमा, थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन का डिफ्रेंसिएशन है वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट्स डेवलप कर रहा है और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट्स ल्यूमेन के अंदर पीएच को डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट्स की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स? दीज ग्रेडियंट्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it is breakdown of gradients that leads to release of energy. प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का डिफरेंस ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। these gradients is broken down, these gradients it leads to release the energy. मतलब ATP, this is the basic concept of कीमोऑस्मोसिस थ्योरी। कीमोऑस्मोसिस के थ्योरी क्या शो करती है कि थैलेकॉइड्स, ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स डेवलप हो रहा है, इट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और ATP। इसलिए प्रोटीन ग्रेडियंट्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है, इट इज कॉल्ड एज FO ऑफ द ATPase। एक FO एक ऐसा एंजाइम्स है जो ATP फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज ATPase। द ATPase enzymes consist of two parts. It is, first one is FO part. It is embedded in a membrane and form a transmembrane channel. ये ATPase एक चैनल फॉर्म करता है और ये चैनल फैसिलिटेट करता है प्रोटॉन को ल्यूमन से बाहर आने के लिए। ठीक है, और जब ये ल्यूमन से जब ये बाहर आएगा तो NADP और क्या फॉर्म करेगा? NADPH फॉर्म करेगा प्लस ATP। तो जो ATP है ये एनर्जी पैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी पैकेट। और ये टाइम टू टाइम जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP। NADPH2 भी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर ATP ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो NADPH it is produced by movement of electron. These ATP will be used immediately in biosynthetic reactions. ठीक है, और ये जो NADPH2 है it is responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. इसके अंदर क्या बन रहा है? शुगर बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने लाइट रिएक्शन रीड किया। लाइट रिएक्शन में स्पेशली थैलेकॉइड के ग्रेना में होने वाली प्रोसेस है जिसमें दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, और ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ट्रैप कर सकें। ठीक है, जनरली जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है तो इसमें ब्लू लाइट और जो रेड लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ग्राफ के थ्रू सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब अलग अलग लाइट की फ्रिक्वेंसी पर फोटोसिंथेसिस का रेट डिफरेंट होता है। जनरली रेड लाइट और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ज़्यादा होती है। दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं और ATP और NADPH का जो जनरेशन हो रहा है वो एसाइक्लिक मेथड और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशंस के थ्रू हो रहा है। एसाइक्लिक में दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी आपको ये एक्सप्लेन करती है कि ATP किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है। ATP का सिंथेसाइज होने का मेन रीज़न हाइड्रोजन और प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का डिफरेंस होना है। ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है। ठीक है, मतलब थैलेकॉइड के अंदर की कैविटी, और ये क्या है? स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस का डिफ्रेंसिएशन होता है और वही जो ग्रेडियंट्स है
ATP और NADPH को फॉर्मेशन में हेल्प करता है. दिस इज कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो आप लोग रीड कर रहे हो ये है. और बेसिकली इसके लिए ल्यूमन से बाहर आने के लिए एक चैनल वर्क कर रहा है. ठीक है, वो चैनल FO चैनल है. और बेसिकली एटीपीएज एंजाइम्स फॉर्म है जो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. तो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर. कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. अब आता है नेक्स्ट कि जो एटीपी और NADPH फॉर्म हुआ है वो डार्क रिएक्शन पर, ठीक है, और नॉन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पर कैसे हेल्प करेगा. तो ATP NADPH2 और का यूज़ कौन सी प्रोसेस पर हो रहा है? इसका यूज़ फूड सिंथेसिस पर होता है. दैट्स अ रीज़न डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज. डार्क रिएक्शन कौन सी फेज कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज. क्योंकि इसमें कुछ चीज़ सिंथेसाइज हो रही है. और सिंथेसाइज क्या हो रही है? शुगर. सिंथेसाइज किससे हो रही है? शुगर. किसकी प्रेजेंस में? NADPH और ATP की प्रेजेंस में. NADPH और ATP कहाँ फॉर्म हो रहा है? लाइट रिएक्शन में. तो लाइट रिएक्शन में कोई चीज़ फॉर्म हो रही है. डार्क रिएक्शन वो क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है. और इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन स्ट्रोमा. Clear? So, what is dark reaction? Basically, dark reaction is called as Calvin cycle, or here 3-phosphoglyceric acid is formed in Calvin cycle, so it is called as C3 cycle. कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कह रहे हैं. क्यों कहते हैं C3 साइकिल? बिकॉज देयर आर फर्स्ट compounds 3-phosphoglyceric acid which is formed. So it is called as phosphoglyceric acid. PGA phosphoglyceric acid. It is 3 carbon compound. So first 3 carbon compounds is formed in this cycle. So it is called as C3 cycle. ठीक है, एक C3 और एक C4 साइकिल है. C4 साइकिल में क्या फॉर्म हो रहा है? ऑक्सलो एसिटिक एसिड और OAA. तो there are some basic changes or basic differences between C3 pathway or C4 pathway. Let us in next video we will give you detailed explanations what is the structure difference of their leaves in C3 cycle और C4 cycle leaves. C3 और C4 cycle leaves में क्या बेसिक डिफरेंस है और वो उसमें C3 साइकिल कैसे फॉर्म हो रहा है, इसमें C4 साइकिल कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन सा साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, ये ऑल पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट you have understood each and every points. So again same instructions I will give you after watching this video. Please read NCERT each and every points and try to understood. Okay student, thank you student, have a nice day.